تو کتاب النو حصہ دوم کے اندر سب سے پہلی جس چیز کو پڑھنا ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس کے اندر مرکب تام کو سمجھا، جو کہ کتاب النو حصہ اول کا حصہ تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مرکب تام صرف اکیلے نہیں ہیں، بلکہ مرکب کی ایک اور قسم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ تو مرکب تام ہم لوگ آلریڈی یہ جان چکے ہیں کہ جہاں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہیں گے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بات مکمل نہ ہو۔ بات مکمل سے مراد کیا ہے؟ خبر یا طلب معلوم ہو جائے، معلوم ہو، اور بات مکمل نہ ہونے سے مراد ہے کہ خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اب مرکب ناقص کو جو ہے چار بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی سے مراد کیا ہے کہ دیکھیے اس کے اندر لفظی اضافی، گویا کہ اس کے اندر اضافت کی جا رہی ہے۔ کس پہ؟ کس کی اضافت کی جا رہی ہے؟ ایک اسم کی اضافت کہیے یا پھر نسبت یا تعلق دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، یہ ہے مرکب اضافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب اللہ ہی، اگر اس کا ہم لوگ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کی اللہ کی کتاب۔ کتاب۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں، رب السماواتی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آسمان، آسمان کا رب، آسمانوں کا کے رب۔ رب۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ جو دو مثالیں ہیں کتاب اللہ اور آسمانوں کا رب، اس کو تھوڑا ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اردو میں پھر عربی کی طرف بول چلیں تو سب بول کو بات کر گا، میں لے دوں نمبر۔ گے۔ آپ بتائیں اس کے اندر کہ یہاں دو اسم ہیں، ایک تو ہے اللہ، لفظ اللہ، اور ایک ہے کتاب، ٹھیک ہے؟ تو اب بات آئی کہ مرکب اضافی کے اندر ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کے ساتھ کی جاتی ہے، یا ایک اسم کا تعلق یا نسبت دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہاں کس اسم کا تعلق کس اسم سے قائم کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں؟ یا یوں کہیے کس کی اضافت کی جا رہی ہے کس کے طرف؟ جی کوئی ساتھی بتائیں بھائی۔ جی اللہ کی کتاب میں جو یہ ہے مرکب ناقص ہے، اس میں کس اسم کی اضافت یا کس قسم اسم کا تعلق
کس اسم کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ دونوں اسم ہیں، تو یہاں اضافت کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف کس کی اضافت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف؟ کتاب. تو یہاں اضافت کتاب کی جا رہی ہے، جی اور نس- لفظ اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ جی جی اللہ کی تو طرف. جس کی اضافت کی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مضاف الیہ. کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. نہیں نہیں، معاف کیجیے گا، اس کو کہیں گے مضاف. مضاف. اور جس کی طرف کی جائے گی اس کو کہیں گے مضاف الیہ. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ جی اسی طرح آسمانوں کے رب میں بتائیے کس کی اضافت کی جا رہی ہے اور کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ جی لیکن ہاں سجاد بھائی بتائیے. آسمانوں کے رب میں آسمان کی اضافت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، لفظ اللہ کی طرف. آسمان کی اضافت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ رب کی طرف. رب کی طرف. رب کی طرف. ہاں رب کی طرف. اس لیے آسمان جو مضاف ہو جائے گا اور رب جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. بھائی آسمانوں کے رب، تو آسمان تو اپنی جگہ ہے قائم، لفظ رب کی اضافت کی جا رہی ہے نا، رب کو جوڑا جا رہا ہے نا آسمان سے، کہ آسمان رب کو کو جوڑا جا رہا آسمانوں کے رب، تو رب کو جوڑا جا رہا ہے. ہے؟ ہاں، رب کو جیسے جوڑا ہے. اللہ کی کتاب ہے، کتاب کو اللہ کی طرف جوڑا جا رہا ہے نا، اسی طرح آسمانوں کے رب تو گویا لفظ رب کو جوڑا جا رہا ہے آسمانوں کی طرف. تو کیا، رب اضافت ہے. تو رب کیا رب اضافت ہے ہے؟ اضافت ہے. اور اور اس کو مضاف جوڑا گیا رب کس کی ہے. طرف؟ آسمانوں کی طرف. تو اضافت والے لفظ کو کیا کہیں گے؟ آسمان مضاف. مضاف اور جس کی اور طرف جوڑا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. نسیم بھائی یہ سمجھے ہوں گے مضاف الیہ. کہ پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. اچھا دیکھیے، یہ اردو کی ترتیب ہے کہ پہلے مضاف الیہ بعد میں مضاف، لیکن عربی میں ٹھیک الٹ جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیے کتاب اللہ، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. الیہ. مضاف الیہ. اسی طرح رب السماواتی میں رب کیا ہے؟ مضاف ہے، رب مضاف مضاف اور سماواتی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. الیہ. کلیئر ہے بات؟ بالکل جی کوئی کنفیوژن نہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے اسی مثال کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہوا ہمارا مضاف، اور یہ کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. اب اس کو اگر ہم لوگ اینالائز کریں کتاب اللہ مضاف اور مضاف الیہ کو، اس کے اندر چند قواعد آتے ہیں جس کو یاد کرنا ضروری ہے. یہ مضاف لکھا ہم نے، یہ ہو گیا ہمارا مضاف الیہ. پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتا. اور مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الف لام آ سکتا ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ تنوین بھی آ سکتا ہے اس پہ. اور تیسری بات اس کے اندر ایک اور لکھ لیجئے، یہ حالت مجرور ہوتا ہے. اور مضاف میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ اسم کے اعراب کو ہلکا کر دیتا ہے. گھبرانے کی بات نہیں، ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح اس نے اسم کے اعراب کو ہلکا کیا. دیکھیے یہاں اگر ہم اس کو اس کے اجزاء کو دیکھیں، اینالائز کریں، توڑیں، تو اصل میں لفظ کیا تھا؟ کتابو تھا یا کتابن تھا؟ کتاب. کتابن تھا نا اصل میں لفظ. جی. ہاں. اور دوسرا ہمارے پاس جو لفظ آیا تھا وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہو تھا. اللہ ہوتا. یہاں لکھتے ہیں. تو ہم کو کتابن کو کیا کرنا تھا؟ کتابن کو ہم کو مضاف بنانا تھا، اور لفظ اللہ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مضاف الیہ بنانا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو قاعدہ ہمارے سامنے ہے، الف لام تو جڑا ہوا نہیں ہے، جڑیں گے بھی نہیں. تنوین نہیں آتا، تو تنوین تو آتا نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ اس آپ کو ہلکا ہلکا کر کریں دیں. گے. تو کیا ہلکا کریں کریں. گے؟ کتابو کر دیا ہم نے. کتاب. چلو. اور لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ کی جگہ میں آ رہا. الف لام آ سکتا ہے، یہاں تو الف لام آئے گا نہیں، کیونکہ یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے. اس میں علم. اسی طرح تنوین آ سکتا ہے، تو تنوین تو ہے نہیں، لیکن زبردستی لانا بھی نہیں. اور دوسرا کیا؟ یہ حالت مجرور میں ہوگا. تو ہم حالت نے کیا کیا؟ مجرور. لفظ اللہ کو حالت مجرور میں لکھا. تو یہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا، کتاب اللہ. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. جی. اب جیسے چند جو ہے قرآنی مثالیں ہیں جس پہ غور کرنے سے انشاءاللہ اور بات واضح ہو جائے گی. جیسے عبداللہ، اللہ کیا ترجمہ بنے گا؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اسی طرح ابواب السماء، جی اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ آسمانوں کے دروازے. آسمانوں کا دروازے. آسمان کے دروازے. آسمانوں نہیں ہے، ایک ہے. آسمان کے سمائی. سمائی. دروازے. اسی طرح طعام المسکینی، کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ مسکین. مسکین کا کھانا. مسکین کا کھانا. مسکینوں کا کھانا. مسکین. مسکینوں. مسکینوں. اور اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں. قوم نوحن، کیا ہو جائے گا؟ نوح کی قوم. علیہ السلام کی قوم. چلیے بہت. اچھا ایک چیز اور ہے جو یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ یہ کہ مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے. کوئی بھی اعراب آ سکتا سے مراد کیا ہے؟ تو ساتھی بتائیں گے.
زبر زیر زیر پیش پیش، دو تنوین زبر دو تو یہ کیا زیر کس چیز کی نشاندہی ہے؟ اگر پیش آ رہا تو کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفعی رفیع. تو گویا اس سے بات یہ اخذ ہو رہی ہے کہ یہ حالت رفیع میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعلی حالت، اور یہ حالت نصبی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مفعولی حالت، مفعولی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری چیز یہ حالت اضافی جری میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی حالت مجرور جری حالت، جی. ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم لوگ مثال کے ذریعے سے مزید اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ قرآنی مثال دی گئی ہے کتاب کے اندر، جیسے مثال کے طور پر قوم عبداللہ، عبداللہ۔ اب دیکھیے قامہ کیا ہے بھائی، پہلے یہ ہم لوگ اینالائز کر لیں۔ قامہ قوم یہ مضاف، فعل ہے، فعل ہے، فعل ہے. قوم فعل، اور عبداللہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف مضاف. اور یہ لفظ کیا ہے؟ اللہ مضاف مضاف یہ الیہ، مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے۔ اور یہ جملہ کون سا بن رہا ہمارا؟ جملے فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ بنا ہمارا۔ کیسے جملہ فعلیہ بن گیا؟ شروع میں سے شروع ہوا. فعل آیا، فعل سے شروع ہو گیا، یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن رہے ہیں؟ فعل مفعول، ایک خبر بن رہا ہے. فعل کے ساتھ کیا آتا ہے فاعل، فاعل. نا، یا مفعول آتا ہے؟ کیا بن رہے ہیں؟ یہ فاعل بن رہے ہیں یا مفعول بن رہے ہیں؟ عبداللہ، فعل کے ساتھ فاعل آتا. تو کیا ہے یہ؟ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول ہے. کیسے سمجھا آپ نے یہ مفعول ہے؟ فعل کے ساتھ میں فاعل ہو گئے تو پھر یہ دونوں ملا کر کے مفعول ہے. دونوں ملا کے کیسے مفعول بنے گے پاپا؟ یہ فاعل ہے لفظ عبداللہ، اللہ کے نیچے زیر ہے نا، لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے. دیکھیے یہ جو لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے یہ نشاندہی ہے کہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا۔ مضاف فاعل الیہ. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفعی، حالت رفعی میں حالت ہوتا ہے. رفیع میں ہوتا ہے. حالت، اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصبی، حالت رفعی حالت میں. نصبی میں. حالت حالت نصب۔ حالت نصب، حالت نصب تو ان دونوں میں کوئی حالت نصبی دکھ رہا آپ کو؟ عبداللہ نہیں دکھ رہا. نہیں نہیں نہیں، مفعول نہیں ہے۔ جی. اچھا تو فاعل حالت ہوگا، حالت جری، یہ حالت اضافی اگر ہوگا تو وہ کس تو حالت جری میں ہوگا؟ حالت میں، جری حالت میں. جر میں آ جائے اچھا گا، لفظ حالت اللہ اضافی حالت کس جر کس میں، حال میں ہوگا؟ کون کون سے حال میں ہوگا؟ ایک تو مضاف الی جر آئے، اور جری. بھائی جر جر آئے گا آئے، تو حالت جری میں چلا جائے گا۔ الف لام. اور یہاں جر ہے، لفظ جر ہے، دیکھیے کوئی جی. مضاف الیہ ہے. جر تو نہیں ہے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے، نہیں ہے. تو جب جر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جر کے علاوہ اگر وہ حالت جری میں چلا گیا تو ضرور اس کا مضاف ہے، اور ٹھیک اس سے پہلے والا اسم اس کا مضاف ہے، تو گویا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اچھا مضاف کس حالت میں؟ اصل ہم کو دیکھنا مضاف دیکھنا ہے، تب ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ مضاف کون سی حالت میں ہے؟ رفعی، نصبی حالت، مفعول ہے، رفعان، رفیع ہے. رفیع حالت میں، اور رفیع حالت میں کیا ہوتا رفعان، ہے؟ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے؟ فاعل، فاعل۔ تو فاعل، کہیں گے مضاف اور مضاف مضاف الیہ مضاف مل الیہ کر کے مل یہ کر فاعل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ فاعل. فاعل، فاعل بن گیا. فعل فاعل، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قام عبداللہ فی القامہ. قامہ عبداللہ کے معنی کھڑا کیا؟ ہے، کھڑا. کھڑا ہوا اللہ، اللہ کھڑا ہے. اللہ کا بندہ کھڑا ہے. قامہ یہ گزشتہ ہوا زمانے میں ہے، کھڑا ہوا، کھڑا ہوا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا بندہ کھڑا کھڑا. کھڑا ہوا. کھڑا ہوا۔ ایک اور جملہ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر صرف فعل اور فاعل ہی ہے نا بس؟ جی جی جی، چلیے اب کون کرے گا یہ؟ یتلون. چلیے یتنون،
ترکیب کیجئے، ترکیب معنی بعد میں، پہلے ترکیب. یتلون فعل، یتلونا فعل، چلیے. ہم ضمیر فاعل، اچھا، ہم ضمیر فاعل، ہاں. اور کتاب و مضاف، کیا ہے؟ کتابو کہاں ہے؟ کتاب، کتاب کہاں ہے؟ کتابہ، کتابہ کتابہ مضاف، کتابہ مضاف، ہاں لفظ، لفظ اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور آگے یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، کیسے مفعول. پہچانا آپ نے یہ مفعول بنا؟ کیوں تو فاعل ادھر میل، فاعل ادھر میل ہے نا، تو مفعول ہی رہ گیا. ہاں نہیں، اس کی کوئی یہ پہچان ہے؟ زبر ہے، جی نصبی باپ حال، پر زبر ہے. ماشاء یہ اللہ، ماشاء اللہ، ہاں باغبر بےحد زبر ہے، خوب، نصبی. بےحد خوب. کس نے جواب دیا تھا بھائی؟ میں نسیم جواب بھائی. دیا تھا عابد بھائی. ماشاء اللہ، نسیم صاحب ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے نسیم بھائی جب جواب دیتے ہیں. کو یاد ہے جب نسیم بھائی شروع میں جب ہم لوگوں نے تکرار شروع کیا تھا، بیچارے بڑی محنت کرتے تھے. آج ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی محنت رنگ لا رہی ہے. الحمدللہ. ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نسیم بھائی تھوڑا ریلیکس موڈ میں چلے گئے. اب نوٹ ووٹ نہیں کرتے ہیں آپ. اتنا اچھا بتا رہا ہوں کہ عابد بھائی، آپ کیسے بتاؤں گا؟ نہ پہلے آپ نوٹ کرتے تھے، ایک ایک چیز کو لکھتے تھے، اب نوٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ تھے جی، اب جی سیکھ نوٹ لیا نا کرتے تب کھائے ہیں. لکھیں گے. تو اچھا ابھی تو پروجیکٹ استاذ جب بن بننے گیا. لگا ہے نا عابد بھائی، تو تھوڑا اچھا اچھا، یہ ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے کتابہ کے پروجیکٹ نہیں اندر بن کیا رہا ہے، تھا. با کے اوپر نصب لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ مفعول بنے گا. مفعول، مفعول. تو اس کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. ہم چونکہ ضمیر ہے، تو ہم جی ضمیر ہے تو ہم ضمیر کو پہلے ہم لائیں گے. اردو میں جب ہم ترجمہ لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ وہ سب وہ سب وہ اللہ کی کتاب کے ہیں، وہ اللہ کتاب کی کتاب کو پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں؟ وہ سب تلاوت کرتے ہیں. تو وہی ٹھیک ہے. وہ سب اللہ اللہ کی کی کتاب کتاب کو کی تلاوت 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 کرتے ہیں. تلاوت. کرتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ. چلیے اب تیسرا جملہ آ رہا ہے، یدعون الی کتاب اللہ. جی ترکیب کون کرے گا؟ کروں گا انشاءاللہ. جی یدعونا فعل، يدعون ہم ضمیر فعل. فاعل، ہم ضمیر فاعل، اور الہ حرف جر، جر ہے، ٹھیک ہے. اور کتابہ مضاف، جی اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. جی جار مجرور نکل گیا نا، کیا ہوگا یہ؟ فعل کے جار متعلق مجرور بنتا ہے. فعل کے متعلق. ٹھیک. جار مجرور مل کر فعل کے متعلق. چلیے ترجمہ فعل کیا. اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ فعل بنایا ہوا. فاعل اور فعل کے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بنا. بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھی ترکیب. اور یدعون چلیے کتاب الہ کتاب اللہ. چلیے وہ ترجمہ کیجیے. یدعون کے کیا معنی ہیں؟ وہ سب بلاتے ہیں. اللہ وہ کی سب کتاب کی طرف. وہ سب اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا، ماشاءاللہ. چلیے ایک اور جملہ لے لیتے ہیں ہم لوگ. جی مولانا قاسم صاحب موجود ہیں؟ جی جی الحمدللہ. جی آپ اس جملے کو کیجیے.
नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती। जी कीजिए हजरत। नादा अस्हाबुन नारी। नादा नादा क्या है? मुनादी। नादा फेल है। फेल है। वाह। हरफे निदा है। हाँ और बेनिदा नहीं फेल है, ये फेल है। फेल है हाँ पुकारा। जी 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 फेल है। पुकारेंगे। जी जी नादा और असहाबुन नारी। ये क्या है? जन्नत अस्हाबुन वालों नारी ने क्या है ये? नहीं, आग वालों ने। असहाबु मुजाफ है, अन्नारी मुजाफ इलैह। मुजाफिर मिलकर ये फाइल होगा। यहाँ पर एक मिनट दो जरा, मुजाफ मुजाफिले है ना, ये भी एक है ये मिनट भी है, भाई अस्हाब कोशिश वाले। करने दीजिए साथी को, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी 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 कीजिए हजरत। हाँ, ये मुजाफ इलैह मिलके हाँ अब आगे फिर ये आगे दोनों पे आगे भी ये असहाबुल जन्ना वो भी वो छोड़ मुजाफ दीजिए, इलैह। अभी उसको छोड़ दीजिए, एक एक का काम कीजिए। जी जी। पहले इसका काम इसको देखिए क्या है ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? फाइल बन रहे हैं, मफूल बन रहे हैं। ये फाइल बन रहा है। मुजाफ इलैह फाइल। कैसे कैसे पहचाना आपने ये फाइल बना है? ये मुजाफ के ऊपर पेश है। वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया पेश आप। है तो फाइल ही। चलिए अब इसका ऑपरेशन कीजिए। जी। असहाब मुजाफ और अल जन्ना मुजाफ इलैह। असहाबु कहाँ है? यहाँ पे असहाबा है, देखिए आप सही से। हाँ असहाबा, हाँ जी जी हाँ सॉरी। असहाबा मुजाफ, हाँ अल जन्नती मुजाफ इलैह। जी क्या बना ये दोनों के? मुजाफ इलैह मिलकर मफूली। कैसे पहचाना आपने ये मफूल बना? ये मुजाफ के इलैह पर जबर है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। आप जब समझाते तो बहुत अच्छा समझ में आता, आबिद भी बोलने में जरा शक और डर लगता। क्या आप तर्जुमा कीजिए, तरकीब हो गई है, आप तर्जुमा कीजिए। जी। नादा क्या है? नादा के माने? हाँ पुकारना। नादा मतलब आप पुकारना या पुकारा कहिए, क्योंकि ये असहाब। माजी में है ना, जी माजी जी। पुकारा होगा। ये बोलिए असहाब कासिम के भाई। माने क्या है? असहाब अन्नार। हाँ यानी असहाब कह सकते हैं, जहन्नम वाले, असहाबुल जन्ना जन्नत वाले। हाँ। पुकारा गया किस जहन्नम वालों को। नहीं किसने पुकारा? करने वाला जी। कौन है? पुकारने वाला कौन है? आ, करने वाला अल्लाह। नहीं नहीं यहाँ अल्लाह कहाँ भाई, ना भाई कोई मदद नहीं करे हाँ, इनको जी जी। कोशिश करने ठीक का ठीक ठीक। मौका दिया जाए, ठीक है। मैं तो समझ गया हूँ अमित भाई। हाँ हाँ नहीं इनको पहले दे दीजिए मौका इंशाल्लाह। नादा हाँ, पुकारा। देखिए काम क्या हो रहा है यहाँ पे? काम क्या है? पुकारने का काम है ना, पुकारा है। तो जी जी। किसने पुकारा? काम हाँ, कर। जहन्नम वालों ने पुकारा। हाँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जहन्नम वालों पुकारा। ने पुकारा। पुकारा। चलिए काम और काम करना दोनों बता, करने वाले को बता, किसको पुकारा? जन्नत वालों को। वाह क्या बात है, सही तर्जुमा हुआ। असहाबुल जी। जहन्नम वालों ने बिल्कुल सही है। पुकारा। जन्नत वालों को। अब बात समझ में आई आपको? जी जी। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत वरहमतुल्लाह। शुक्रिया आबिद भाई, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। हजरत जी जी मुजाफिर के का की तर्जुमा नहीं होगा? जी के का की का तर्जुमा होगा? हाँ जब अगर यहाँ पे के काकी का तर्जुमा करना है तो फिर ऐसा करना होगा आपको, जहन्नम के लोगों ने पुकारा जन्नत के लोगों को, इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
ने अच्छा आया ना, जहन्नम वालों ने भी हाँ, लगाया ना। वालों का भी तर्जुमा हो सकता है जी हर जगह में। चलो खैर, चलिए एक और, अब कौन तैयार है इसके लिए भाई? जिसने नहीं किया वो आगे बढ़े। इंशाअल्लाह मैं तैयार। आप तैयार है? चलिए माशाल्लाह। ला तुसअलू, अन अस्हाबिल जहीम, मी है, ठीक है, अस्हाबिल जहीम। चलिए, ला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम। जहीम भी वही दोजक आ गया, जहन्नम आ गया, ठीक है। अस्हाबिल जहीमी वही हो जाएगा, जिसमें जहीम जो है दोजक है। चलिए, मदद के लिए हमने बता दिया। चलिए कीजिए हजरत। ला तुसअलू क्या है ये? फाइल, ये क्या है? ला तुसअलू फाइल, फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। ला तुसअलू, ये काम करने वाला कहाँ है यहाँ पे? सवाल करने वाला। सवाल करने वाले को। इसका ला तुसअलू कौन से वजन पे आ रहा है? हम्म, फेल, फेले, मजहूल। फेले मुज़ाहरे की पहचान क्या है? इसके शुरू में क्या आएगा? अलिफ ता या नून, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके जी हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये इसकी पहचान हो गई। ता आ गया तो गोया ये फेले मुज़ाहरे है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर क्या है? जबर नहीं है, पेश है, यस, मरफू है। अब इसकी पहचान क्या हो गई कि ये मुज़ाहरे मजहूल है, ठीक है। मुज़ारे मजहूल। और उससे पहले ला आ गया, ला क्या हो गया? मुज़ाहरे मनफी मजहूल हो गया, मजहूल। फेले मुज़ाहरे मनफी मजहूल। और ता किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुखातब। हाँ जी, उसके लिए। तो अब तर्जुमा कीजिए, तो हमारा क्या निकला? ये तरकीब यहाँ हमने क्या किया? ये फेले मुज़ाहरे मनफी, मजहूल मनफी। मजहूल हुआ, और किसके लिए हुआ? ये हाजिर के लिए हुआ। और कौन, क्या है ये? हाजिर मुजक्कर के लिए हुआ, वाहिद मुजक्कर हाजिर, ये सीगा वाहिद। वाहिद। चलिए अब तर्जुमा कीजिए ला तुसअलू का। सवाल नहीं किया गया। जी, किससे सवाल नहीं किया नहीं, गया? अच्छा, दो वो सेकंड। बाद में तर्जुमा भी मत कीजिए, अभी तर्जुमा नहीं कीजिए, हाँ, पहले अभी तरकीब हम तर्जुमा लोग ना कर लें, करेंगे। ज्यादा बेहतर होगा। अन जी क्या है? मेरे कैसे में जी हर्फ। जी, नासिर भाई, जी, अन क्या है? अन हर्फ। जी, हर्फ है। चलिए, अस्हाबिल जहीम क्या है? अस्हाबिल जहीम, हर्फ जर। कैसे बेहतर हो गया? अस्हाबिल जहीम, अस्हाब क्या है? ये फेल है या फिर हर्फ अस्हाब है या इस्म है? क्या है ये? अस्हाब जो है ये इस्म है। इसमें अल जहीम क्या है? ये मुज़ाफ इलैह। माशाल्लाह। ये भी इस्म है, क्योंकि जी, ये भी। नाम आया। लेकिन अब दो इस्म हो रहे हैं, तो अब इसके अंदर अब दो इस्म में देखना है कि भाई क्या ताल्लुक है इसमें। तो अस्हाब क्या हो गया हमारा? मुज़ाफ, अब मुजाफ अब होगा। अल जहीम मुज़ाफ मुजाफ इलैह। इलैह।
मुज़ाफ़ इलैह। ٹھیک ہے، اب یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مضاف مضاف الیہ. یہ حرف کو کیا کہیں گے؟ جار بھی کہیں گے نا. جی. اور یہ دونوں مل کے کیا ہو گئے؟ مجرور ہو گئے. جار مجرور. جار مجرور بن گئے. اور یہ جار مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ بتائے ساتھی. فعل کے متعلق متعلق بن گئے. تو فعل کے متعلق بنے تو ظاہر بات ہے بھائی اس کا فاعل بھی تو ہوگا نا. تو فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں فاعل ظاہر نہیں ہو رہا، فاعل چھپا ہوا ہے. اور کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ چھپا ہوا ہے. کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ وہ یہ نائب فائل نائب فائل. نائب فاعل. جی. تم چھپا ہوا، تو چھپا ہوا ہے، یا آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیجئے. کیا تو چھپا ہوا ہے حضرت. تو ہاں تو حاضر ہے نا، حاضر سے حاضر مذکر، یہ مذکر ہے نا، اچھا واحد ہے. تو اس کے لیے تو یا آپ لے آئیے. عابد بھائی، یہ آپ نا فائل کی جگہ نائب فائل کر دیں تو ساتھیوں کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا. آپ سوال نہیں کریں، آپ سے سوال نہیں کریں گے. لا تتلو. جی جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال نہیں. سوال نہیں کیا جائے گا. حضرت یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے آپ سے سوال نہیں کیا گیا. نہیں نہیں نہیں. جہنمیوں کے بارے میں. آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پھر سے کہیے، پھر سے اگر ترجمہ آپ کہیے. کیا گیا کر دیں گے نا، کیا گیا، تو یہ ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا. کیا جائے گا یہ مظاہرے کیا جائے گا. یا کیا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ سے سوال نہیں کیا جاتا جہنمیوں کے بارے میں. چلیے. یہ تھوڑا ہارڈ تھا عابد بھائی، جی کیا بول رہے ہیں؟ تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑا دماغ چاہیے تھا. ہاں ہاں نہیں سمجھ آ گیا، سمجھ سمجھ آ میں گیا آ تو گئی. ماشاء اللہ. بس الحمدللہ. ہارڈ جی تھا وہ مجھے چھوڑ سمجھ دیں. آیا. بس الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. چلیے ابھی تک تو ہم لوگوں نے جو مضاف دیکھا ہے وہ مضاف کو واحد شکل میں دیکھا ہے. اب ہم لوگ جو ہے مضاف کو ہاں یہ عابد بھائی ایک منٹ، میرے کچھ ڈاؤٹ ہے. جی بولیے. یہ مضاف الیہ سے پہلے اگر حرف آیا تو یہ جار مجرور ہوتا کیا؟ نہیں دیکھیے حرف آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، یہ اس نے کیا کیا، مضاف کے نیچے جو ہے وہ جر لگا دیا. جی جی جی. اصحاب الجحیم تھا لیکن اس سے پہلے عن آیا تو اس نے کیا کیا، جحیم تو پہلے ہی سے جر میں تھا، اس نے اچھا اچھا. اصحاب کو بھی جو ہے جر میں کر دیا. اور جی حرف کیا ہوا، جار ہوا، اور یہ دونوں مل کے جار مجرور بن گئے. مجرور. مضاف مضاف الیہ. کیا وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں اگر حرف آئے اس کے بعد مجرور کا آنا ضروری ہے کیا نہیں کر کے یہ پوچھ دیکھیں رہے میں ہاں ہیں. ایک جی ایک وہ تو مجروری حالت میں لا دے گا، بڑا ہاں پاورفل ہے. آپ لوگ ترکیب کے دوران ایک کام کر لیں، بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے نا، آپ ڈائریکٹ نہ سوچا کریں فائل ہے یا یہ مبتدا ہے، ڈائریکٹ نہ سوچیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. یعنی بنیادی طور سے تعین کرنا شروع کریں گے نا تو زیادہ آسان ہے. پھر آپ نے جب سمجھ لیا اسم میں، تب آپ کو اب غور کرنا ہے کہ اسم تو کئی سارے ہوتے ہیں، اب یہ اسم میں کون سا اسم ہے. تو اب ہم جانتے ہیں جملے میں جب ترکیب ہوتی ہے تو اسم اگر شروع میں آ جائے تو مبتدا ہی ہوتا ہے، تو یہ مبتدا ہو جائے گا اگر شروع میں ہوگا تو. ٹھیک ہے. تو یعنی مزید آگے کے دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ. پھر جب آپ نے وہ مبتدا بھی دیکھ لیا تو اس کے بعد یہ آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ. تو اب مبتدا آپ نے دیکھ لیا نا، ابھی بھی آپ کو ڈرنا نہیں ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے وہ ہے کیا، اسم فعل حرف میں سے
है क्या। उसके बाद में आपको देखना है कि इसम फेल हर्फ में से होने के बाद वो उसके अंदर मजीद क्या है। अच्छा, उसके बाद उसके तकाजे क्या है। देखें, अगर मुब्तदा है तो उसका तकाजा एक खबर होगी, ठीक है। ऐसे सबके तकाजे देखते हुए भी चले। अभी हरफ जर है तो हरफ जर का तकाजा है कि मजरूर होगा। मुजाफ है तो मुजाफ का तकाजा है कि मुजाफ इलैह होगा। जी यानी जी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। चलिए, अब मुजाफ जो है हजरत उसको वहाँ वहाँ ऊपर मुझे एक और डाउट है कि वो जो है नीचे कर किए, जो ये हरफ है अन, हाँ हाँ इसके बाद जो है असहाबी, ये असहाबु था। जी, असहाबुल जहीम था, तो उसने उसको अन ने जो क्या किया, उसको जर मिला दिया, असहाबी कर दिया। हजरत ये क्या है कि वो जो लाम है ना, लाम, हाँ हाँ, वो लाम पहले से ही साकिन। कौन सा लाम? अल जहीम का? जी। हाँ, वो तो अल जो है वो तो हरफ तारीफ है ना। हम्म। वो तो हम लोगों ने इसको पहले ही कर लिया है मुअर्रब बिल लाम के अंदर, ये मुअर्रब बिल लाम का अल है। ये हुरूफ शमशी हुरूफ कमरी में हाँ पढ़ा था ना भाई, हाँ उसमें आ हाँ गया हाँ। था। हाँ ये हुर्फ कमरी, हुर्फ शमसी 14 14 जो है, हाँ हाँ, तो इसमें भी वही है क्या जो नूरानी कायदे में है? जी जी हाँ, जी, वही है बिल्कुल हजरत। वही है। वही वही चीज, कोई नवी चीज नहीं है वो। हम तो माशाल्लाह हाँ मदरसे से सीख कर आए हैं, इसको याद करने की हाँ जरूरत मतलब, नहीं है। जी जी जी। जी। चलिए, अना रसूल रब्बी, इन्ना रसूल रब्बी का, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्ना तो अभी बाद में हम लोग उसकी तफसील में जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले असबाक के अंदर। अभी असल जो चीज देखने की है वो है रसूल रब्बी का। देखिए असल में जो लफ्ज था वो क्या होता है, अगर रसूल को मुसन्ना लिखा जाए तो क्या था असल में? रसूलानी। रसूलानी था। नून अरबी। रसूलानी रब्बी का असल में था देखा जाए, लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे ऊपर में कायदा हम लोगों ने लिखा भी। ये देखिए क्या लिखा हमने, मुजाफ। अभी आप लोग स्क्रीन के सामने है, मुजाफ के सेक्शन को देखिए, नंबर 3 नंबर पॉइंट को देखिए। क्या लिखा था कि इस्म इसमें के के रात को एराब हल्का। को हल्का कर देता है। तो गोया जब रसूलानी ये मुजाफ हमारा बना, तो अब इसके एराब को हल्का किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? नून को क्या कहते हैं? ये क्या है? हम लोग पहले हल्का। पढ़ चुके हैं, नून एराबी है। हल्का। नून एराबी। और नून एराबी की जय। पहचान क्या है भाई? कि नून, उस नून से पहले, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नून से पहले क्या आएगा? अलिफ, लाम अलिफ हुरूफ है। इल्लत आ सकता है, हुरूफ अलिफ। इल्लत। ठीक है, तो अलिफ वाव या अगर आ जाए नून से पहले, तो ये पहचान है नून एराबी की। तो गोया ये नून एराबी है और मुजाफ बन रहा है रसूलानी। तो अब एराब को हल्का करना है, तो हम क्या करेंगे, फौरन इस नून को गिरा देंगे और हमारा क्या बनेगा? रसूल। रसूला। रसूला। नबी रब। का। रब्बी का। इसी तरह तेरे एक और दो मिसाल हम रसूल। लोग लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यार, इसको बता दे थोड़ा। ये इन्ना, तस्निया। बेशक, रसूल। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए? बेशक बेशक दो रसूल। रब्बी का। रब्बी का दो तर्जुमा क्या रसूल है? रब्बी का, आपके तेरे रब है। रब ने। आपके रब के दो रसूल, हाँ, बेशक। तेरे रब के दो रसूल। ये कहाँ है तो तुम्हारे आएगा क्या रब्बी का? देखिए इसको इसको चलिए हम लोग यही कर लेते हैं, तर्जुमा कर लेते हैं। इन्ना, इन्ना का तर्जुमा क्या है? बेशक। बेशक। बेशक हम हैं। अगर बेशक। सिर्फ इन्ना बेशक हम। होता बेशक तो हम। बेशक होता है, हाँ, तो यहाँ दो। पे बेशक इन्ना है तो नाहनो अलिफ जमीर बेशक आया छुपा हम। हुआ है, तो क्या हो गया? जी। बेशक हम। बेशक। बेशक हम। शाबाश। रसूल रब्बी का क्या हो गया? दो रसूल। दो रसूलों का रब। रब्बी का आ गया आगे में, तेरे रब, तेरे रब बेशक हम तेरे के
रब दो दो रसूल। रसूल हैं। सही है। ठीक है, बेशक जी जी। हम तेरे रब के दो रसूल हैं। बेशक हम तेरे रब के दो रसूल हैं। जी। चलिए एक और लेते हैं हम लोग। इन्ना मुरसिलु नाकती, मुरसिलुन नाकती। ठीक है, पहले हम लोग इसके अंदर मुजाफ और मुजाफ इलेह को एनालाइज करते हैं। असल में जो लफ्ज था वो क्या था? मुरसिल मुरसिला मुरसिलू ना था, क्या था? मुरसिल मुरसिल। और ये किसके साथ मिल रहा था? अन्ना अन्ना, अन्ना अन्ना कतु के साथ मिला था। मुरसिलूना को मिलाया गया किसके साथ? अन्ना कतु। तो मुरसिलूना क्या बन रहा हमारा? मुजाफ मुजाफ। बन रहा है। हाँ तो मुजाफ बनने का कायदा क्या है भाई? कि इसका एराब हल्का किया जाएगा। तो हमने क्या सही। किया? इसके एराब को हल्का किया। ठीक है, अन्ना कतु था तो उसको क्या करेंगे हम? मुजाफ इलेह बना, अन्ना कती हो जाएगा। क्योंकि मुजाफ इलेह कौन सी हालत में होता है? हालत जरी में, हालत हालत जरी में। तो जी। मुरसिलू नाकती का तर्जुमा क्या हुआ? नाकत ना तर्जमा क्या है इसमें? भाई नाकती ऊंटनी, और मुरसिलू हम भेजने वाला, भेजने वाला, भेजने वाले होंगे क्योंकि एक कई ज्यादा है ना। तो मुरसिलू क्या हो गया? है मुरसिल। ये हो गया भेजने वाले, भेजने वाले, ऊँटनी। ऊँटनी। और ऊंटनी, ये दो है। अब इसको लिखेंगे कैसे? मुजाफ मुजाफ इलेह बन गया, जी। ऊंटनी के भेजने वाले। हाँ, बेशक हम तेरे ऊँटनी को बेचने वाले हैं। भेजने वाले। और यहाँ पे इन्ना था तो क्या हो जाएगा? बेशक हम ऊंटनी के भेजने वाले हैं। क्लियर है भाई? जी ऊँटनी के भेजने वाले हैं। जी ठीक है, सजाद भाई, ठीक है, माशाल्लाह। क्लियर है? समझ में आ रहा? हाँ हाँ। तर्जुमा किस तरीके से हुआ? जहन में बात आई गई? जी जी। बेशक, हाँ, इन्ना का तो होगा बेशक हम। मुजाफ का ऊँटनी इलेह के, शुरू में है और अब मुजाफ का बाद में है। नाकतों के, नाकती, जी ऊँटनी के, क्योंकि ये के जो है ना, ये मफूल भेजने वाले हैं। जी। ये दोनों मिला के मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर जो है ना क्या होगा? मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर, ये जो है ना मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर फाइल 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 तो यहाँ है। भाई ये क्या हो गया? ये मुब्तदा हो गया मजरूर। हमारा, ये खबर होगा। और ये दोनों मिलके क्या बन गए? ये खबर बन गए। खबर मुजाफ मुजाफ इलेह खबर होगी मुब्तदा। ठीक है, क्लियर है भाई? जी जी। ये आगे बढ़े। दोनों मिलकर क्या क्या, मुजाफ मुजाफ इलेह मिलकर क्या मजरूर हुआ ना? मजरूर कैसे बना? खबर बन गया ना ये तो। खबर बन गया। अच्छा, मुब्तदा खबर। जुमला इसमिया है ना भाई, इसम से शुरू हो अच्छा, रहा है। सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है भाई? जी जी समझ में आ रहा है माशाल्लाह। चलिए कुछ आयत लेते हैं हम लोग, उसमें जरा सा गौर करते हैं हम लोग। यदाहू, अल्लाह। तर्जमा भी जानना जरूरी है एक हिसाब से। जी
यदाहु मबसूततानी, सिर्फ गौर करना है इसमें, माने वगैरह में नहीं जाना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि ये है क्या। यदाहु क्या है? ये हाथ हर्फ है। निदा। यदा, इसम, नदा कहाँ है? यदा है। यदा, यदा हर्फ यदा निदा नहीं है। असल में लफ्ज क्या था? यदानी था। क्या था लफ्ज? यदानी, यदा यदानी था। और ये हु क्या है? जमीर। हु ये जमीर। हु जमीर है ना। हाँ जी, हु जमीर। तो ये वो दोनों जमीन जब मिले, मुजाफ इलैह। ये दोनों जब मिले तो ये बना हमारा मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह। और ये बना हमारा मुजाफ। मुजाफ, मुजाफ का क्या होता है? एराब हल्का होता है ना, इसलिए क्या बन गया? ये दोनों मिलके क्या बने? यदाहु बन गए। बात समझ में आ रही भाई? जी। जी, जी। का यदाहु अच्छा, का एक बात तर्जुमा ये क्या भी हो बोल जाएगा तब? उसका हाथ, उसके। या उसका उसके, हाथ, उसके हाथ, दोनों हाथ। उसके दोनों दोनों हाथ। यदान, उसके दोनों हाथ, मबसूततानी। चलिए, चलिए एक और मिसाल लेते हैं हम लोग। अबेद कद्दम, भाई, मबसूत मबसूत अतानी का ये कौन सा नहीं माना हो गया? देखना पड़ेगा भाई हमको। मबसूततानी का माने क्या है? उसको छोड़िए ना, अभी हम लोग को असल वो समझना नहीं है। असल हम लोग को क्या? समझना है मुजाफ मुजाफ इलैह। बाद में इंशाल्लाह इस सबको निमट लेंगे हम लोग, ठीक ठीक, ये दाऊ का अभी इंशाल्लाह। पहले कराया। से निमट जाए। जी जी। और ये भी बोले थे आबिद भाई, हाँ अगर हाँ, क्या कहते हैं, जमीर किसी इसम के साथ मिला हो तो वो भी ये जो है ना दोनों हाथों को मारिफा। चबाने के माने में नहीं है, वो अपने दोनों हाथों को चबाएंगे मबसूत। हाँ हाँ, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। उसके वो दोनों हाथों को चबाएंगे। जरूरुद्दीन भाई, आप हर चीज का माना बता देते हैं, अपने तो खुद बना लेते हैं का? लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ, सुनी सुनी। अरे यार, जब कोई बात रहती है तो उसका माना जरूर आप बता देते हैं। वो जमाल तो लगता है घोटालो कि है आप भाई, खुद सब बनाते पी हैं। गया है वो। चलिए आप दूसरे मिसाल की हाँ? तरफ आते हैं भाई, दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। यही कद्दमत, कद्दमत को अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ यदाहू में गौर कीजिए। देखिए वही चीज आ गया। इली यदाहू के अंदर कद्दमत ये क्या है? यदा, यदा क्या है? यदानी। ये यदा मुजाफ, मुजाफ इलेह हाँ, है। मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलेह, चलिए, हाँ, हु जमीर मुजाफ। दोनों दोनों मारिफा। क्या है? अब बताइए क्या है इसके अंदर? यदई ही क्या है? ये दही ही, भाई असल में क्या था? यदा क्या था? यदान, यदानी था ना, ये यदानी था। और ये हु था ये ना हु, भाई, हु था ना ये भाई। हु देखिए बात जमीर है। सुनिए, तो पहले इसको क्या किया गया? यदा हु बना पहले ये, ठीक है। लेकिन जी इसके आगे आला जुड़ गया। आला क्या है? हरफ जड़ है, जर हरफ है। जर है। तो और हरफ यदई जर ही मजरूर यदानी है। तो थोड़ी थोड़ी रहेगा उसमें। उसमें क्या हो जाएगा? यदैनी यदई होगा ना। ही, जी, हरफ जर यदईनी। की वजह से यदई ही होगा। यदैनी प्लस क्या था? हु जैसे था वैसे ही था। इसने क्या किया? यदैनी को पहले जमीर। मजरूर किया। क्या किया? मजरूर किया। यदई किया, और हु को ही कर दिया। तो क्या हो गया? अला यदई ही।
अला बस यदैहि। जार मजरूर हो गया। जी, बात समझ में आई भाई? जी जी जी। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए और कुछ मिसालें लेते हैं हम लोग। भाई ये आयत का तर्जुमा हो गया। नहीं, आयत का तर्जुमा असल नहीं कर रहे हैं, असल इसमें सिर्फ सिर्फ जो है पहचान करा रहे हैं। पहचान मकसूद है। नहीं ठीक है, दुरुस्त है दुरुस्त। चलिए, रसूलन इला बनी इसराइल। बनी इसराइला। चलिए, सिर्फ हमको देखना है बनी को, देखना है यहाँ पे। किसको देखना है? बनी को। चलिए, बनी को लेते हैं हम लोग नीचे। बनी, अब बनी को तोड़िए। न था, बनी नी न। जी, बनी नी न था। बनी नीना प्लस इसराइल। इसराइल। बनी, बनी कैसे होगा? वो कैसे लिखा जाएगा? जी जी दुरुस्त है, सही सही करा रहे थे आप। बनी नीना। नीना के बनी अंदर क्या नी। छुपा हुआ है? कौन सी, क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? ये तो हो गया हमारा मुजाफ। मुजाफ इले क्या है? इसराइल। इसराइला। जी आबिद भाई। नहीं नहीं नहीं, हम बोले उस पे नहीं जा रहे हैं। ये इसराइला को अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ बनी को ध्यान दीजिए। बनीना। ये तो जमा था ना। इसके बनी। अंदर या जमीर छुपा हुआ है। या जमीर शुबा बनी। ये जमा नहीं है, बनी नी न जमा है। जमा है जमा है। या जमीर नहीं, जमा है। और जमा की वजह से ये नून गिर गया। हाँ बस यानी इतनी बात है, बनी ये इसराइल की औलादें। जमीर जो होती है फेल से निकाली जाती है, इसमें से जमीर नहीं निकाली जाती। हाँ हाँ। देखिए, असल में ये बनी नीना और उसके साथ जो है वो साथ में क्या है यहाँ पे? नून अरबिक गिर गया ना इसमें हुरूफ इल्लत की वजह से। हालत जर्री में है, जिसके वजह से ये ई न आया, बनी नी न। नहीं, इस पे ये नहीं बोल सकते कि हुरूफ इल्लत की वजह से नून अरबिक गिर नहीं गया। नहीं, ये हालत जर्री में है ना। इला की वजह से ये हालत मैं जर्री जो एक बात आता है, कर दी। इस वजह से ये बनी नी न आया। हाँ ये दुरुस्त है आपकी बात जी। कोई साथी बोल रहे थे नूने अराबी के मुतालिक अभी। जी जी, नून अरबिक गिर गया वो हुरूफ इल्लत की वजह से। नहीं, नूने अराबी गिरने की वजह नूने इल्लत नहीं, इजाफत है। ये समझो, जब जमा की इजाफत यानी नूने अराबी वाले इसम की इजाफत जब होती है ना, तब वो नूने जी अराबी गिर जाता है। इजाफत वजह है, हुरूफ इल्लत वजह नहीं है। सही। हुरूफ इल्लत तो नतीजा है, यानी जब वो नूने अराबी गिर जाता है ना, तो हुरूफ इल्लत बच जाता है। तो बात यहाँ समझ पे में भी आई? तो आपका ये नून अराबी गिर यहाँ गया। पे भी बच जाता है ना, या बनी। या तो बच गया ना इधर भी। नहीं, वो हजरत समझा रहे हैं। असल में देखें, बनी इसराइल है तो उसमें से नून गिर गया, ठीक है, तब हम्म। जाके वो बनी हुआ है। उसकी असल बता रहे हैं कि वो असल में था क्या। अच्छा अच्छा। असल में ये बनी नीना और साथ में या जमीर इसके अंदर था। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
आसिम भाई, जैसा मैं ये समझा, थोड़ा ये इसको थोड़ा सही कीजिएगा। मैं ये समझा ये बनी इसम है, और इसम के एराब यानी 3 तरीके से आते हैं। इन है, और हालत जर्री में इन आता है, हालत जर्री और नसबी में, और ऊन हालत रफी में आता है। इला की वजह से यहाँ बनी नीन आया, जी बनो सही नून है, सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इला की वजह से, असल में था वो बनू नूना था, असल में था वो बनू नूना। और साथ में या जमीर तो था। जबर क्यों दिया वहां पर असल में, ये भी मुझे कंफ्यूज हो रहा है। कहाँ पे बोली तो? बनी अभी तो ना। मैं आपको छोटी मतलब राय दूंगा, आप ना ये या जमीर को हटा दें, इसी की वजह से कंफ्यूजन आ रहा है, इसको हटा दें। अच्छा, हाँ, लेकिन उसके अंदर तो तो या साथी जमीर वो छुपा हुआ है ना? नहीं, अगर कोई छुपा हुआ नहीं है, देखिए छुपा हुआ किससे कहते हैं ना, नहीं छुपा हुआ नहीं, जब वो मतलब आपको वो नजर ही उसके ना साथ आए, में इजाफत जब हो वो रही आपको है। नजर ही ना आए, हाँ ठीक है, छुपा हुआ नहीं है। और जैसे फाला में आपको हुआ जमीर नजर नहीं आती है, तब वो छुपी हाँ हुई होती है। यहाँ पे बनीना में आपको या नजर आ रहा है ना पहले से। हाँ, तो वो इजाफत हाँ हो रहा है, तो मुजाफ मुजाफ हाँ, इले बन रहा है। वो ऐसा अभी असल में हो रही है ना। साथ ही बहुत सारे कवाइद पढ़ रहे हैं, अगर हम जरा सा भी ऐसा कर देते ना, जमीर छुपी हुई है, उनका जहन उस तरफ चला जाता है कि हमने जमीर छुपी हुई पढ़ी थी। आप समझा हाँ। रहे सही है, लेकिन उससे आप समझ रहे मेरी बात? हम्म। जी जी। चलिए एक और मिसाल लेते हैं इसके अंदर। आ कौला ली, और बनी बनी ही। देखिए यहाँ पे ली क्या है? ली जो है ये जार है, जर और इसके हर्फ। अंदर भी वही बनी ही, असल में वो था बनूना प्लस या था, तो उसने क्या किया, उसको बनी बनी कर दिया। ये वाला बनी ले आया यहाँ से। और इसी तरह आखिरी में जो मिसाल है, तो यही चीज वहां पर आप बनी नी, नून के नीचे जेर लगा रहे थे आप। हाँ बनी नी। बनी वो जेर बनी नी नहीं लगा ना रहे थे, था, उसको अंडरलाइन करके समझाया जा रहा था। बनी नी ना बनी था ना। असल में, वो बनी नी ना। अच्छा। नहीं, जी अगर तो वो कह रहे हो वो बनीन के नीचे आपने नून के नीचे जेर डाला हो, तो आप समझाते हो डाले थे ना, ये वाला जेर। जी जी। जेर समझ रहे हो, वो तो हाँ लकीर है, वो तो अंडरलाइन हाँ, है। ठीक। आमन तू बिही बनू। तो ये लिबनी फिर जार मजरूर बन गया ना? हाँ जी, ये तो हो गया आपका मुजाफ, ये है मुजाफ इले, मुजाफ इलैह। और ये दोनों बन गए मुजाफ इलैह मजरूर। मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर जी फेल के इसी तरह मुताबिक। आमन तू बिही बनू इसराईला, इसके अंदर भी बनू आ गया। लेकिन आमन तो आ गया, आमन तो नहीं हो गया ना, मैंने ईमान लाया। आमनत, माफ कीजिएगा, आमनत। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, ईमान तकरार लाया अल्लाह पर। कब से शुरू है, किस टाइम जी से? जी, एक घंटे के करीब होने वाला है। ओफो, बन मैंने भी देखा। आमनत बिही बनु इसराइल। असल में बनू ना था, बनू ना से बनू। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे असल में था ये बनू ना था, लेकिन यहाँ बनू से ना, ये मुजाफ बन गया, और ये मुजाफ बनू। इले बना। इसने क्या किया, जो बनूना का नून था उसको हजफ कर दिया, अल्लाह उसको गायब कर दिया।
نون عرابی کو ہلکا کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ بنو اسرائیل. ٹھیک. یہ حالت رفیع. جی حالت رفیع میں. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ شمار کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر نعمتن ہے، نعمتن ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ نعمتن کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور ہم نے کیا کہا کہ پوائنٹ کیا ہے؟ مضاف الیہ معرفہ ہو تو الیہ مضاف بھی معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ شمار. معرفہ شمار ہوگا. نعمت النکیرہ ہے، لیکن ہم نے جیسے اس کو کہا نعمت اللہ، تو یہاں لفظ اللہ کیا ہے بھائی؟ نکرہ کی معرفہ ہے. جی لفظ اللہ کیا ہے؟ نکرہ یا معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. تو اب نعمت کو کیا شمار کریں گے؟ یہ بھی معرفہ. اب یہ بھی معرفہ بن گیا. نعمت بھی معرفہ. بات سمجھ میں آئی؟ معرفہ. یہی اگر مل کے رہے تو نعمت اللہ. جی جی جی. اور دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ضمیر اسم کے ساتھ آئے تو اسم مضاف ہوگا اور ضمیر مضاف الیہ. جیسے مثال کے طور پر اخی، اخی کے اندر دیکھیے دونوں چیزیں آ گئی. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں اس کو توڑا جائے اخن تھا، اخن. یا ضمیر. آیا ضمیر آیا، یا ضمیر آیا، هذا میرا. تو اس نے کیا کیا؟ اس کو اخی، اخن کو اخی کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابوہ، ابو. ابی. ابو. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ابو. ابن. ابن تھا، ابن. ابن. اور پلس ہو ضمیر آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو ابو. ابو کر دیا. اسی طرح ابصارهم. ابصارہم، ابصارهم. اصل میں کیا تھا؟ یہ ابصارن تھا، جی اور هم. ہم تھا. یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ ابصارهم. اسی طرح سمعهم. سمعہم، سمعهم. سمع. سمع تھا نا، سمع. اور ساتھ میں ہم ضمیر سمعہم. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ مرکب اضافی کے اندر ایک سے زیادہ بھی مضاف آ سکتے ہیں.
ज्यादा मुजाफ आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे घर मालिक यौमिद्दीन। की खिड़की, अब ये बताइए घर की खिड़की क्या है? ये जी, घर की खिड़की क्या है भाई? जी भाई, आवाज आ रही मेरी? ये आवाज आ रही ये है। आ रही है। जी, घर की खिड़की क्या है? एक सेकंड, घर की जो है मुजाफ, खिड़की घर की मुजाफ है, खिड़की मुजाफ। ये मारिफा मारिफा है। भाई घर की खिड़की में यहाँ मुजाफ 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 इलैह है। कौन है मुजाफ, कौन है मुजाफ इलैह? किसकी इजाफत की जा रही, किसकी तरफ? खिड़की की खिड़की की तरफ, खिड़की की इजाफत करके जा रहे हैं घर की तरफ। खिड़की मुजाफ हो गया जी, और घर खिड़की क्या है? मुजाफ, मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह। अब मैं कहूँ घर की खिड़की का शीशा, अब क्या है? ये शीशा क्या है? इजाफा, और इजाफत, शीशा जो है मुजाफ ये भी इजाफत। मुजाफ है। ये तो भी मुजाफ। अब क्या देखा कि एक से ज्यादा मुजाफ आ दो गया, मुजाफ, दो मुजाफ आ गए। घर घर की खिड़की का शीशा खूबसूरत। का मुजाफ भी हो सकते हैं, मुजाफ इलैह भी हो सकते हैं। घर की खिड़की का शीशा, टुकड़ा। थोड़ा अब क्या हो गया? ये टुकड़ा क्या हो गया? मुजाफ। हाँ, ये भी मुजाफ हो गया। मुजाफ, अब क्या लिखा? जर्रा। अब क्या है ये? टुकड़े का ये भी जर्रा, मुजाफ। ये भी मुजाफ ही है। मुजाफ। आप देख रहे हैं क्या बात आया? मुरक्कब इजाफी में एक से ज्यादा मुजाफ आ सकते हैं, तो कई एक मुजाफ से आ गए। ये तो उर्दू में लिखने का तरीका था। अब अरबी के अंदर इसको कैसे पहचाना जाए कि कई कई मुजाफ आए हुए हैं? ये बात है। जैसे मिसाल के तौर पर अरबी में अगर लिया जाए मालिकी, ठीक है, यौमी, मजरूर की वजह से है। अद्दीनी, मजरूर को भूल जाइए, अभी मजरूर मत देखिए। एक की वजह से दीनी का। जी, तो यहाँ पे देखिए मालिकी क्या है हमारा? मुजाफ। मुजाफ, मालिकी हमारा मुजाफ है। हम्म, अच्छा, पहले तो ये हमारा यौम क्या बनेगा? पहले तो मुजाफ इले बनेगा। मुजाफ इलैह बनेगा मुजाफ, मालिकी का। इसका मालिकी का मुजाफ बना ये। समझ गया। हाँ, फिर मालिक का मुजाफ। अद्दीन क्या है? अद्दीन मुजाफ इलैह। मुजाफ है। इलैह। मुजाफ मुजाफ, मुजाफ मुजाफ मुजाफ। और पहले, इसका बाद में मुजाफ, मुजाफ इलैह। तो इसका मुजाफ इले बना। जी, और इसका जी, मुजाफ कौन बनेगा? इसका यौम, मुजाफ बनेगा यौम, यौम पड़ेगा। तो यौम दोनों किरदार निभा रहा है, मुजाफ इले भी और मुजाफ भी, दोनों कैरेक्टर है इसके अंदर। तो देखिए यौमी में अगर देखा जाए, चूंकि ये मुजाफ इले है, तो इसके अंदर क्या आ गया? मुताबकत की बात कर रहे हैं ना, यानी कि एक अगर मुजाफ इलैह आता है तो मुजाफ मुजाफ पहले आता है, तो मुजाफ इलैह का आना जरूरी है बाद में। कब दोस्त, यही बात है ना आबिद भाई? नहीं नहीं, इसका कायदा हम लोग समझे। देखिए सबसे पहली बात, यौम क्या है? मुजाफ इले भी है, मुजाफ भी है। तो पहले अगर वो मुजाफ इले बन रहा है तो वो कौन सी हालत में होगा? हालत हालत जर जर में। तो हालत जर में है यौमी, क्योंकि वो नहीं है। मुजाफ इले बना है। अरे कहाँ है वो? है जी जी बिल्कुल, हाँ जी। यौमी है ना भाई। यौमी। अच्छा, इसमें तो इसमें फिर हालत जर कौन सा है? पहले वाला, ये तो
एक मिनट, एक एक करके आ रहे हैं, रुके ना। और दूसरी चीज, ये मुजाफ बना तो इसकी वजह से अलिफ लाम नहीं है। जी सही बात है, अलिफ नाम मुजाफ नहीं इले आने की की वजह वजह से ये से, भी मुजाफ है। मुजाफ और इले की तनवीन वजह भी से नहीं। हालत जर नहीं, और मुजाफ की वजह से अलिफ लाम नहीं है। लाम। तो जहां देखा ये जाएगा कि एक से ज्यादा अगर मुजाफ आ रहे हैं, तो जो मुजाफ आखिर में आया है उससे पहले जो इसम आएंगे वो दोनों किरदार निभाएगा। वो मुजाफ भी बनेगा और मुजाफ इले भी बनेगा। मुजाफ इले किसके लिए बनेगा? अपने से पहले वाले के लिए मुजाफ इले बनेगा। और मुजाफ किसके लिए बनेगा? वो अपने बाद उसके वाले बाद वाला। अपने बाद वाले में, और उसके अंदर दोनों कैरेक्टर मौजूद होगा। देखिए मुजाफ इले का कैरेक्टर क्या था? तो मुजाफ इले कौन सी हालत में आता है? हालत जर हालत जर में आता है। हालत जर में वो आता है हालत जर भी होगा। और और तनवीन मुजाफ का कैरेक्टर क्या होता है? हालत जर में नहीं होगा, अलिफ तनवीन भी लाम नहीं नहीं होगा। नहीं, होगा। मुजाफ का कैरेक्टर क्या होता है? मुजाफ का तनवीन नहीं होता। अलिफ लाम आएगा, अलिफ लाम आएगा। अलिफ लाम नहीं होता। मुजाफ का नहीं कैरेक्टर क्या होता। है? देखिए ना, यहाँ ऊपर लिखा है ना हम लोगों ने। हाँ अरे भाई अलिफ शुरू लाम में जाइए ना एकदम बिल्कुल। जी जी नहीं अलिफ होता है। लाम भी नहीं देखिए होता, पहला तनवीन नंबर भी नहीं लिखा होता। मुजाफ अलिफ नहीं होता। आप देखिए ऊपर में, तनवीन भी नहीं होता। तो तनवीन अलिफ भी भी नहीं नहीं होता। है। तीन चार आपको हल्का कर देता है। जी जी सही सही, वो मुजाफ इलैहि में है, तो करेंगे लेकिन लगता है। चलिए मुरक्कब इजाफी की कुरानी मिसालें अब पूछ लेते हैं हम लोग। मैं ये पूछ रहा था आबिद भाई, इसको जो सबसे पहला वाला मुजाफ और मुजाफिले जो पहला कि ये मुजाफिले किसको देख करके किए? मुजाफ को देख करके किए है ना मुजाफिले। हालत जर जो लिखे हैं यहाँ पर पहला वाले में, मुजाफ के बाद जी मुजाफिले यौमी, जी हाँ तो सही है। मुजाफ किस वजह से है ये पहला सबसे पहले में? हालत इसमें जर है अलिफ वो। लाम भी नहीं है और इसमें तनवीन भी नहीं, इसको इसमें मजाफ है। माशाल्लाह। अच्छा हाँ ठीक, वही कह रहा हूँ। चलिए समझ गया। चलिए मुरक्कब इजाफी की कुरानी मिसालें अब हम लोग लेते हैं। जी जल्दी जल्दी बताए भाई। गैबस समावाती, गैबा में मुजाफ मुजाफ और समापाती मुजाफ इलैह। माशाल्लाह। माशाल्लाह। हम लोग किताब ही खोल लेते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ खाली वहीं टिक करते रहेगा चलेगा। यौमल क़ियामह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, देखिए ठीक न, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा अब ठीक आ रहा। चलिए चलिए, गैबस समावाती, इसके अंदर बताएं मुजाफ मुजाफ इलैह कौन है? गैबा मुजाफ, समावाती मुजाफ इलैह। तर्जुमा क्या होगा? अस, गैब आसमानों में, के गैब गैब। समावात में आसमान, आसमान समावात में क्या होता है? आसमानों के गैब होगा। हाँ, आसमानों के आसमानों गैब। पे। रिस्कुल्लाही, अल्लाह का हाँ, रिज्क। रिज्क मुजाफ, अल्लाह कर मुजाफ मुजाफ इलैह। रिज्क मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह। ये भी बोल सकते हैं इसको मिल करके अल्लाह का मजरूर, नहीं अभी हालत जमा मजरूर। मजरूर छोड़ दिया ना, वो तो कुरान से उठाया गया ना, मुझे इस वजह चलिए से। ठीक है। ठीक है, अहद अल्लाही, आहद अल्लाह, या अल्लाह का अल्लाह अहद। अहदुल अल्लाह मुजाफ अल्लाह ही लफ्ज अल्लाह ही मुजाफ इलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का वादा। फजलुल्लाह, अल्लाह का फजलुल्लाही, फजल। हाँ फजल मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ और मुजाफ, लफ्ज लफ्ज अल्लाह अल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह। इलैह। अहलुल यह क्लियर किताबी, है। अहलुल मुजाफ और किताब मुजाफ इलैह। यहाँ तो सब अस्हाबुन दौड़ेंगे नारी, खाली, सब बता देंगे। अहलुल किताबी ये भी जो है ना मुजाफ और मुजाफ मुजाफ इलैह। इलैह।
जी असहाब अन्नारी में भी मुजाफ मुजाफ इलैह। माशाल्लाह। चलिए रब्बुना, का है रब रब। हाँ, रब्बुना, रब्बुना, हाँ, रब्बुना। रब, ये रब्बुना। ये भी जो है ना मुजाफ मुजाफ इलैह। हाँ मुजाफ कौन इलैह। मुजाफ क्यों है बोले कौन तो मुजाफ इले भाई, ये बताइए। रब्बुना अलग है। रब मुजाफ। हाँ ये नहीं मुजाफ नहीं, मुजाफ इलैह का तो पैटर्न चढ़ चुका है माशाल्लाह, बेहतरीन सवाल किया आबिद भाई ने। चलिए जी बताएं भाई, साथी बताएं, जल्दी बताएं। रब्बुना मुजाफ मुजाफ इले रब, कौन है इसमें? ये हाँ, जो है ना मेरा रब। जमीर मुजाफ इलैह क्या? क्या पूरा पूरा बताइए, कौन जमीर है, क्या है मुजाफ, क्या है रब्बु ये नाम से? मुजाफ, नाम मुजाफ इलैह। नाम हाँ मुजाफ अरे इले कैसे रुकिए, होगा? आना जो है उसमें मुजाफिले होगा, आना रब्बू कैसे जो मुजाफ है इले होगा? मुजाफ होगा। ना किसके लिए आता है, अरे कौन से जमीर के लिए आता है? जमीर है, हाँ, मुतकल्लिम। मुतकल्लिम में कौन सा, वाहिद या जमा? वा वाहिद जम। वाहिद, वाहिद। वाहिद। भाई रब्बी होता, रब्बुना है, जमा के लिए है। तो जमा रब, जमा के लिए है। रब हो गया हमारा मुजाफ, और नहनो जमीर हो गया मुजाफ इले, याद रहेगा भाई? हाँ जी जी। नहनु जमीर मुजाफ इलैह। अच्छा जमीर तो ये पूरा पूछ। चैप्टर में मुजाफ मुजाफ इलैह ही है ना जी हाफिज जी भाई? जी, बस खत्म होने वाला है। यहाँ रब्बुकुम भी वैसे ही है। ये सब रब्बु कुछ। मुजाफ हम और जमीर कुम। पर। हम जमीर मुजाफ इलैह। हाँ कुम रब्बुना के ये अंदर मुजाफ कौन सी इलैह जमीर सिंपल छुपी है। हुई है? कुम असल हम्म? कौन सी जमीर को बता रहा है? कुम ये जमा, ये क्या बोलते हैं रब्बुकुम। भाई अंतुम को बता रहा है रब्बुकुम। अंतुम जमीर हाजिर छुपी हाजिर, हुई हाँ है। हाजिर है ना। तब हाँ जमा हाजिर, जमा हाँ जब मुजक्कर वहां पर हाजिर। बता दिए नहनु जमा जमीर, मुजक्कर ऐसे ही है। हाजिर। अंतुम जमीर। चलिए इलाही, जी इलाही क्या है बताइए? इलाही मुजाफ, इलाही इला जो है मुजाफ। मुजाफ हाँ, ही, इलाही। मुजाफिले। चलिए इसको करते हैं तरकीब, ये थोड़ा सा कॉपी में करना पड़ेगा। इलाही मेरा भाई, क्या मेरा इलाही, मेरा माबूद अखी इलाही। मेरा माबूद, चलिए लोगों का माबूद। मेरा नहीं होगा, उसका जी, उसका माबूद। चलिए बोलिए भाई, तरकीब लोगों इला तरकीब कीजिए। मुजाफ, जी, इला मुजाफ ही मुजाफिले। ये मुजाफिले हाँ, बोला, हो गया। और कुछ अन्नास है? अन्नास अन्नास मुजाफ। लोग, अच्छा वो भी है ना, अन्नास, हाँ, यहाँ अन्नास। तो आबिद भाई ऐसा होगा ही जमीर। भाई अन्नास अभी तो हम लोग पढ़ा, एक से ज्यादा जो है मुजाफ। वो हाँ मुजाफिले हो मुजाफ। सकता है। मुजाफ भी होगा, मुजाफिले भी होगा। तो अन्नास क्या हो गया, ये हमारा मुजाफिले। ठीक। और ही क्या हो गया हमारा, ही के अंदर दोनों कैरेक्टर है, मुजाफ भी है मुजाफिले भी है। हाँ मालिक यौमिद्दीन जैसे। हाँ हाँ इलाही, हाँ सही बात है। इलाहिन्नास तर्जुमा क्या होगा? लोगों का माबूद। लोगों का रब, लोगों का रब। रब का तर्जुमा थोड़ी करेंगे, माबूद। अच्छा अच्छा सर जी, लोगों का माबूद। लोगों के, अच्छा लोगों लोगों के के माबूद। लोगों माबूद। के माबूद। ये के लोगों के माबूद, लोगों का था ना। यही मैं कंफ्यूज हो कि ये अन हर्फ ये क्या हो मुजाफ रहा है? मुजाफिले दोनों चीज एक ही काम करता है वो। कुलूब जमीर कुलूबिहिम, हाँ कुलूबिहिम। कुलूब ही, अच्छा, मुजाफ है कुलूबिहिम। कुलू, हिम जो हिम हाँ हम भैया। जमीर फाइल। कुलू मुजाफ है, बी मुजाफ इलैहि है। बा और बी हिम। कहाँ से? ये बी नया मुजाफिले आया क्या मार्केट में? नहीं नहीं बी, ये बी जार नहीं मजरूर। है, हम जमीर ये तो मुजाफिले। बात और ऑफिसर है। और बाहर फिर आ है। गया। नहीं 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 नहीं, मतलब के और क्या भाई बोल रहे इसे। कुलूबुन था ना, कुलूबुन जी। क्या था? कुलूबुन। कुलूबुन। उलूबन। और हम जमीर उसमें लग गया, हम हाँ जमीर हम पर। जमीर। लग गया। हाँ तो मुजाफ मुजाफिले बन गया। हाँ मुजाफ मुजाफ। सही। चलिए अच्छा, यदा का, अच्छा। हाँ मुजाफ मुजाफ इलैहि। कौन है मुजाफ, यदा कौन है ले? यदा यदा, मुजाफ। यदा मुजाफ है, का मुजाफ इलैहि, का जमीर। क्या था, यदुन था ना? हाँ यदुन था। और उसमें का का जमीर, का का जमीर का जमीर मुराद यदुन। क्या है?
का ज़मीर से मुराद क्या है? फाइल का ज़मीर से का कुमा कुम काकुमा काकुमा अरे क्या यार है? कौन है? ये का ये गैब हाजिर है, गैब गायब है, मुतकल्लिम है, नहीं, क्या है? गैब गैब वाहिद मुजक्कर गैब वाहिद मुजक्कर गैब गायब का है कि हाजिर का सिगा है? नहीं, वाहिद गैब मुजक्कर किसके बदले में आता है? नहीं का कुमा अंता के कुम बदले में आता है, अंता अंता। अंत के अंता बदले मैं जबान में ही था आबिद भाई, मैं क्या करूं, डर के मारे नहीं बोला मैं, कहीं गलत ना अभी हो तो जाए डांट सही रहे में। थे इसलिए चलिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आई भाई? हाँ, जी। किताब निकालो। चलिए, अरे अब अभी यार, समझ तो में आ ये रहा भी है। पीडीएफ भेज दो ना। हाँ जी जी, अभी भेज देंगे। इसका अभी काम कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये तो मैं लिख लिया, फिर भी अगर पीडीएफ भेज देंगे तो ये एक कापी अलग से रखा, तो दुआ अलग हिस्सा अव्वल का ऐसा ऐसे बना रहा। जी जी जी, माशाल्लाह। अगर आज पूरा पीडीएफ भेज देगा आबिद भाई ना, तो आपके लिए जुमा में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मतलब ऐसे नहीं कीजिएगा, पीडीएफ भेजेंगे दुआ तो इसका शर्त अल्लाह करेंगे दुआ ना, है, थोड़ा सा और करेंगे ना। नहीं, शर्त वाला हमेशा दुआ कर हमेशा रहे हैं आएगी आप। दुआ। वही एक जो खास होता है ना, दुआ की आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है, देखो 50 रुपए दोगे तो लड़के के लिए दुआ करेंगे, और 25 रुपए दोगे तो लड़की की दुआ कर देंगे। सही है बिल्कुल। नजीम भाई। एक मिनट भाई। हाँ, आबिद भाई और चलेगा तकरार, बस करें। बस कर, जुमा है आबिद भाई आज, तुम आए आबिद भाई। थोड़ा सा कोई बड़ा काम धाम है। हाँ, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है, दुआ करिए हमारे लिए भी इंशाल्लाह। हमारे पास जमात आते हैं। जितना लेट हो रहा है उतना शादी बढ़ता जा रहा, पता नहीं क्या बात है। आबिद भाई जरा मैं छुट्टी ले रहा हूँ, दुआ की दरखास्त और तमाम पूरे साथियों से भी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक ठीक। आपसे भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जकरिया भाई क्या रहमतुल्लाहि नोट्स व फरमा रहे हैं?